So I'm just going to share the screen. Okay. Just let me know the screen is visible to you or not. It is visible, right? Visible. Okay. So we were working on a control room of a hydropower project, right? So in the last lecture, I have shown you how to import a CAD file, AutoCAD file, and then how to, align or fix it and create the levels and grids, right? This is what we did in the last class. Moreover, we created some, beams or maybe columns for ground floor, maybe, right? So we will proceed further in the same model, right? This is our model. If you can recall, always try to work with fine mode and visual display option should be shaded, right? So this was basically the model which we were creating. Is there any doubt until here? Did you practice? You guys practice or not? If you haven't practiced, this is very bad. You should practice. And if you have practiced, then that is really good. Okay, मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं हो पाई है, प्रैक्टिस में कुछ प्रॉब्लम था। ठीक है. What about Aldrin and Naveed? एक दिन किया था सर। एक दिन किया था, ऐसे मत करो, प्रॉब्लम हो जाएगा. Keep practicing, otherwise you will forget the things, right? Okay, so I'll proceed further. This is my level 2. Okay, and let me go to the west view. This is my west view. Correct? करेक्ट। Okay, and so this is grid 4. Okay, we do not have vertical grids here. No problem. VG is the shortcut for visibility graphics. And if you just want to hide the background image, you can just, switch off the background image whenever it is not required, right? It will be gone. Now, this is my level 2, level 3. So we basically created the level 1 columns, and then I try to copy the columns and then paste it for the other aligned flows. But there is a problem. See, there is a gap. These are not properly aligned. The gap is because we do not have the story size, story height similar. I mean, for example, if you have a building which has similar story height, 3 meter, 3 meter, 3 meter each, okay, then you can copy the columns and paste it to the different floors in one go. But if you have different heights, like your one level is 3 meter, another level is 3.5 meter, and maybe another level is 4.5 meter, 4 meter. In that case, you will find this kind of problem. The column is short from the bottom. This column is also short from the bottom. This column is, large because the height is less. So in this case, there is no need to worry. You just select these columns. Okay. After selecting these columns and from the other view as well, select from the other view as well, one by one, with the help of your cursor, mouse. Now these have been selected from all the other sides. Okay, north, east, west, south. Right. Now you can go to select from this side as well. With the help of cursor, mouse, right? Just select these
सॉरी, आई एंटर्ड इनटू द फैमिली। जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो इट विल टेक टू यू द फैमिली। समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, आई अगेन select all these columns. See, when I select this one column, base offset value is 800. It should be 0. There should not be any base offset or top offset, right? Ideally, this column should go from level 2 to level 3 without having any top offset. Top offset is already 0. That is why it is not going beyond. ठीक है ना, इसका top offset 0 है. So it is aligning with the level 3. But base offset 800 है, right? So for that reason, it is going up. I will make it 0, right? So the problem is that how you gonna select all these columns in one go? That is the thing. Okay. Again, it is, I mean, डबल क्लिक होने की वजह से it is going to the family, but डबल क्लिक हो जाता है तो बाई चांस इधर चला जाता है. ठीक है. Go to VG and switch on. ड्रैग करके नहीं होगा एक बार में सिलेक्ट? Hmm. ड्रैग करके? Drag करके, actually the thing is that it is taking the these grids as well. हाँ, तो उसको सर कंट्रोल दबा के फिर उस ग्रेड में क्लिक कीजिए तो अनसिलेक्ट हो जाएगा। Hmm. कंट्रोल दबा के, कंट्रोल। Yes, I'm pressing control, but it is not taking. नहीं हो रहा है? I don't think so. What the, I mean, that is equal. The thing is equal. I mean, बात वही होगा. आप इसको 1 by 1 सेलेक्ट कर लें. ठीक है ना, हम्म, क्विकली. अरे, डबल क्लिक. Mouse is very active. It is going. Just click them. Go to another view. Select them. Okay, we can do another thing as well. This is my 3D view. Okay, and I have to select these columns now. HI, go to HI. ठीक है. HI is the hide view. ओके। जो भी एंटिटी आप आइसोलेट करना चाहते हैं, ठीक है, उसको सेलेक्ट करिए एंड प्रेस HI. HI इज द शॉर्टकट फॉर हाइड. ठीक है, ओके। वही चीज आपको दिखेगी, बाकी सब वहां से हाइड हो जाएगा. ठीक है, दिस इज वन वे. अब आप इसको सेलेक्ट करिए. अब आप यहाँ पर राइट क्लिक करके सेलेक्ट सिमिलर व्यू. ओके, and then from other side as well. Now they have been selected from all the sides, right? यस। Again, select from this side as well, right? I think it is okay. We are good to go from this side as well. Okay. Okay. Now make this base offset 0, right? Now the column is going from base level 2 to top level 3. This is what we want. There is no base offset value. There is no top offset value. Okay, fine. Now again we want to see our whole project. So press HR. क्या प्रेस करना है? HR. Reveal hide. ठीक है ना, HR means reveal hide. HI means hide. Now again I am selecting these columns. Level, which level is this? Level 3 columns. I am pressing HI. ठीक है, HI में again I am selecting these. No, one column. Right click, select all instances in view. I'm sorry. Again, right. Press control, go to another view. Again, control, go to another view. Go to another view. These have been selected. Now go to the level 3. See, base offset is 500. We do not want any offset value. We want 0 offset value, right?
it has adjusted the height. Now it is going from base level 3 to top level 4. Again HR, press HR. It will show you the entire building. Now for this particular view, press HI again. Okay. Then this column, select all instances in view, control, different view, backs, left, side, all the views, make it 0. It has negative value. That is why it is going into the lower building, lower value, lower level. Right? Go to HR again. So now your all columns are perfectly fine. Now you have to make one more column, one level more. I mean, there is one more level which is 5 to 6 level. So we have to provide columns for them as well. No problem. Select this. Okay. And HI. Okay. Select one column. Select all instances in the visible view in the view. Go to another view. All columns have been selected. Now copy them, paste them, align to selected levels from level 5 to level 6. We want at this level. Press OK, OK, and press again HR. So now you have your columns, beams, level 5. Oh, something is wrong. There was a warning as well. तो सर आएगा six Sorry? आएगा level No, सर no, level 6 पे it आएगा वो no. It should come on level 5, but the problem पता है क्या हुआ है यहाँ पर? ओवरलैपिंग हो गया है आई थिंक. वो डेप्थ और हाइट वाला कॉन्सेप्ट मालूम है ना? आई थिंक वो डेप्थ में लगा दिया हमने, इसलिए इट इज नॉट विजिबल. ओवरलैपिंग हुआ है. आई विल शो यू. यार ये सी द फैमिली मैच. डिलीट करता हूँ मैं इसको. यहाँ पर डबल कॉलम लग गए हैं. ठीक है, कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं. वो डेप्थ में चले गए कॉलम, लेवल 5 से 4 तक चले गए वो. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आ रहा है वो क्या डेप्थ? और यहाँ पर जो ऑप्शन आता है ना जब आप कॉलम प्लेस करते हो, तो इट आस्क यू वेदर यू वांट टू गो डाउन और अप. देखो वो नीचे प्लेस हो गया है, इस वजह से हमें दिख नहीं रहा है. ठीक है, डबल हो गया है। हम्म. ठीक है, अभी ये यहाँ भी ठीक है. इन दिस व्यू एज वेल, दिस इज ऑल्सो ओके. नाउ मैंने ये वाले कॉलम सेलेक्ट किए और HI प्रेस किया. ठीक है, अभी मैंने एक कॉलम सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, एंड देन आई सेलेक्टेड विजिबल इन व्यू. राइट, मैंने इसको कॉपी किया, फिर मैंने इसको पेस्ट किया टू द अलाइंड टू द सेलेक्टेड अलाइंड लेवल्स 5. ओके. अब बोर्डिंग देर आर आइडेंटिकल सेम प्लेस, देयर विल बी रिजल्ट इन डबल. ये क्या कर रहा है? सेम लेवल पर प्लेस कर रहा है. ठीक है, फिर से मुझे 6 नंबर में कंट्रोल Z. जाएगा वो, 6 नंबर। हाँ, नहीं नहीं जाएगा तो फ्लोर 6 पांच में नंबर में. जाएगा सर, नहीं लेवल 6 में। जाएगा 5 में ही. 5 में ही जाएगा। 5 में ही जाएगा, लेकिन वो ऑप्शन मेरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले. देखो बताता हूँ फिर से. सेलेक्ट किया HI. ठीक है, अभी मैंने सेलेक्ट किया सेलेक्ट इन द विजिबल, राइट, कॉपी. ठीक है, कॉपी करने के बाद में मुझे पेस्ट करना है, और वो ऑप्शन 5 to 6 में करना है. चलो 6 में करते हैं, 6 में आएगा. राइट,
HR। ठीक है, 6 में क्यों आया है वो पता है? यहाँ पर देखो, अभी मैं कॉलम सेलेक्ट करता हूँ। आई विल गो टू प्लान। प्लान में मैं गया और मैंने कॉलम सेलेक्ट किया। ठीक है, कॉलम सेलेक्ट करने के बाद लेवल 0, चलो लेवल 0 में जाता हूँ। कॉलम सेलेक्ट किया और यहाँ पर देखो ये लेवल हो गया फर्स्ट 0। हाँ। फ्रॉम विच लेवल टू विच लेवल ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो वो क्या कर रहा था उस टाइम पर, लेवल 5 से लेवल 4 तक जा रहा था वो। इस वजह से अगेन वो डुप्लीकेट कर रहा था। ठीक है, डुप्लीकेट कर रहा था वो, इस वजह से हमारा कॉलम वो वहां पर आ रहा था। अब देखो यहाँ पर ये डेप्थ आ रहा है ना, ये देखो आ डेप्थ। रहा है। हाँ, हमें हाइट में लगाना है बेसिकली। हमें 5 से 5, वी वांटेड टू गो फ्रॉम 5th टू 6th लेवल, बट वो क्या कर रहा था, डेप्थ में 5th टू 4th जा रहा था। यही इशू था बस। ठीक है, तो हमने जी उसे सर। 6 पे लगाया तो वो लग गया, कोई बात नहीं। नाउ हमारे कॉलम्स ऑलमोस्ट सारे लग गए हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर कोई ओवरलैप करता है, यू नीड टू सेलेक्ट दैट कॉलम एंड चेक फॉर द कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, हमें कहीं पर भी ऑफसेट वैल्यू नहीं चाहिए। कोई स्पेशल केस में व्हेन यू पीपल विल बी वर्किंग, किसी रियल प्रोजेक्ट में काम कर रहे होंगे, कभी आपको जरूरत होगी कुछ ऑफसेट की, तो आप यहाँ से दे सकते हैं, बट इन जनरल, इन अ जनरल प्रोजेक्ट इट इज नॉट रिक्वायर्ड। हमें फ्लोर टू फ्लोर कॉलम चाहिए होते हैं, वो हमने लगा दिए हैं यहाँ पर। अंडरस्टूड? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वेस्ट व्यू में हम गए और वीजी में हम गए। अगेन वी वेंट टू वीजी, इंपोर्टेड कैटेगरीज में मैंने सेक्शन व्यू को अगेन दोबारा से ओपन कर लिया। मुझे ये देखना है कि कितने लेवल तक मेरे कॉलम होने चाहिए। देखिए ये है लेवल 1 टू लेवल 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6। ठीक है, यहाँ पर मुझे कॉलम्स नहीं चाहिए। बियॉन्ड 5 देर आर नो कॉलम्स। ठीक है, जस्ट ओनली लिफ्ट पिट है। ओके, एंड देन शॉर्ट ग्रिड है, एंड दिस आर्च शेप्स क्राउन है। ये हम बाद में विद द हेल्प ऑफ फैमिली क्रिएट कर लेंगे एंड देन उसको हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है, बट एज फार एज स्ट्रक्चर इज कंसर्न, बिल्डिंग इज कंसर्न, मेरे कॉलम्स लेवल 1271 तक हैं ऑलरेडी। ठीक है, कोई इशू यहाँ तक? नहीं कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ से 1267, 650, 1271 क्यों आ रहा है यहाँ पर फिर? ये लेवल इनका गलत है या हमारा गलत है? व्हाई इज इट सो? सी, 1267, 1263, 650, व्हाई 1258, 500 का डिफरेंस है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 500 ऊपर में सर लेबल गड़बड़ है ऊपर। ऊपर में। वन टू यहाँ तक, सेवन यहाँ तक, जीरो का। यहाँ तक इट इज ओके। देखो लेवल 2 1253.35, दिस इज ओके। यहाँ पर गड़बड़ है। 1258, 115 का आ रहा है, हमारा 650 आ रहा है। व्हाई इज इट सो? फ्लोर टू फ्लोर मेजर कर रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या है, कुछ तो है। ठीक है, एनीवेज कोई नहीं, लेवल्स वगैरह तो कोई इतना वो नहीं है हार्ड फास्ट, वो तो यू कैन चेक। नाउ आई विल शो यू हाउ टू कॉपी दी बीम्स एज वेल। मैंने एक बीम सेलेक्ट किया, आई प्रेस राइट, आई क्लिक, आई मीन आई प्रेस राइट क्लिक, आई विल राइट क्लिक ऑन इट एंड देन सेलेक्ट ऑल इंस्टेंसेस इन द एंटायर प्रोजेक्ट। राइट, सारे बीम सेलेक्ट हो गए। आई विल कॉपी दोज बीम्स, okay, from clipboard and I'll go to align to selected levels। जिस जिस लेवल पर मुझे ये पेस्ट करने हैं मैं वहां पर सारे लेवल्स सेलेक्ट कर लूंगा। तो मुझे कहाँ कहाँ करने, इस लेवल पर, इस पर, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, नो दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स। सो आई स्टार्ट फ्रॉम थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स। इज दैट ओके? थर्ड, फोर, फिफ्थ, सिक्स्थ, आई प्रेस ओके।
it will paste all the beams on the desired level. Let's see. Is that fine? यहाँ तक कोई दिक्कत? हेलो, यस सर। फाइन? ठीक। ठीक है, ओके। ये हमारे बीम्स हो गए, ठीक है। इस लेवल पर हमारे कोई बीम नहीं है। दिस इज माय लेवल 1। लेवल 1 के नीचे हमारा एक राफ्ट फाउंडेशन है, ठीक है। और कुछ पोर्शन में वी हैव सम्प एज वेल, तो इसको हम बाद में मॉडल करेंगे। उससे पहले आई शो यू हाउ टू मॉडल दी slab. So this is my level 2. I'll go to level 2. लेवल 2 में मैं गया, मैंने यहाँ पर देखा कि मुझे ये मेरे कॉलम्स बीम है। I'll go to फाइन मोड, I'll go to शेडेड मोड, ठीक है। ये मेरा बिल्डिंग प्लान है। अब मुझे यहाँ पर लेवल 2 का प्लान इंसर्ट करना होगा, ठीक है ना। मुझे देखना होगा लेवल 2 में मुझे कहाँ कहाँ पर काम करना है, कौन कौन से कटआउट्स हैं, कहाँ पर स्टेयर केस है, कहाँ पर कुछ अलग ओपनिंग है या नहीं है, शाफ्ट वगैरह कुछ भी, एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू इंसर्ट, ठीक है। एंड देन मैं इंपोर्ट कैड, आई विल इंपोर्ट माय कैड फाइल जहाँ पर भी है, ठीक है। आई विल गो टू डाउनलोड, डाउनलोड में मैं डॉक्यूमेंट्स, एंड देन आई विल गो टू डाउनलोड्स, ठीक है। ये मेरी प्लान, प्लान 1, मैंने प्लान इंसर्ट किया। और मुझे देखना है कि फाइल मेरी जब आएगी तो लेवल 2 का फ्लोर प्लान मैं इसके नीचे इंसर्ट करूंगा, एंड बेस्ड ऑन दैट आई विल प्रोवाइड एनी ओपनिंग और स्लैब और कटआउट और स्टेयरकेस कटआउट, लिफ्ट कटआउट, पिट वॉल, एनीथिंग एल्स, व्हाटएवर। समझ में आ रहा है? एल्ड्रिन एंड व्हाट, नवेद एंड यस। कंट्रोल जेड करता हूं मैं, ठीक है। इंसर्ट करते टाइम मैंने सेटिंग्स चेंज नहीं की, मुझे सेटिंग्स चेंज करनी चाहिए थी। प्लान ऑटो डिटेक्ट नहीं, मिलीमीटर में है मेरी ड्राइंग। मैनुअल सेक्टर, मैनुअल सेंटर मुझे सेलेक्ट करना है ताकि मेरे पास कंट्रोल रहे, जहां पर भी प्लेस करना है वहां मैं प्लेस कर सकूं, ठीक है। अब देखो लेवल 2 मेरा कौन सा है, दिस इज माय लेवल 2, आई बिलीव सो, ठीक है। दिस इज लेवल 1, 1248.85। दिस इज माय लेवल 2, 1253.35। कैसे चेक करेंगे, मैं अगेन चाहता हूँ, ये देखिए 1253.35 लेवल 2 है। कोई दिक्कत लेवल 2 में? अभी मैं इसको अलाइन कर लेता हूँ, ठीक है। हाउ टू अलाइन, कैसे बताया था अलाइन करना, कम ऑन फास्ट। अगर मुझे अलाइन करना है ग्रिड के साथ, इस ये लाइन को ग्रिड के साथ करना है, तो कैसे मैं अलाइन करूंगा? अलाइन कमांड बताया था ना, गो टू लाइन मॉडिफाई, कमांड से तो ग्रिड पहले को जहाँ किस, चेक करेंगे तो पहले ग्रिड को, पहले किसे सेलेक्ट करना है? ग्रिड को सर। ठीक है, गुड। पहले मैंने ऑटो कैड ड्राइंग को क्यों नहीं सेलेक्ट किया? अच्छा सर, उसके साथ वो लाइन हो जाएगा ना, ऊपर वाला इतना। हाँ, अगर मैं पहले ऑटो कैड ड्राइंग को सिलेक्ट करता तो मेरी ग्रिड अपनी जगह से मूव होकर वहां पहुंच जाती। सिंस आई हैव फिक्स्ड माय ग्रिड्स, तो मुझे अब ग्रिड को पहले सेलेक्ट करना है, और ऑटो कैड ड्राइंग क्योंकि अभी मूव मूव कर रही है, मैंने उसको इंसर्ट किया है, तो उसको मुझे अलाइन कराना है मेरी एग्जिस्टिंग ग्रिड से, बिकॉज आई हैव फिक्स्ड माय ग्रिड्स लोकेशन। अब मैं ग्रिड्स को मूव नहीं करना चाहता, ठीक है। इसलिए पहले मैंने ग्रिड को सेलेक्ट किया एंड देन ऑटो कैड ड्राइंग को अलाइन किया, राइट। अब देखिए यहाँ पर देर इज वन स्टेयरकेस विच इज हियर, ठीक है, another staircase which is here, so that means यहाँ पर स्लैब नहीं आएगी और यहाँ पर भी स्लैब नहीं आएगी। रेस्ट ऑफ द पोर्शन में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है,
आप स्लैब लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हाउ टू place the slabs or how to create the slabs, this is the question now। very simple है, कोई दिक्कत नहीं है। simply आपको you need to go to structure, okay, and then we have options। there is a there is an option of floor, okay, we have floor, structural floor, architectural floor, slab edge। ठीक है, since we are working on a structural model तो we will select structural floor। ठीक है, don't get confused with the this slab which is foundation slab। ठीक है ना, this is a slab which is foundation slab, basically kind of raft foundation, strap foundation। so never get confused with these two कि ये भी slab है, यहाँ पर floor है, which one I need to use। simply जब आप floor बना रहे हैं तो you have to select the floor slab। ठीक है, जब आप फाउंडेशन में काम करेंगे तो you need to take this raft foundation slab or whatever slab is it। ठीक है, so I am selecting structural floor slab। ठीक है, जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया आई एम हैविंग दीज मेनी ऑप्शंस। ठीक है, पिक सपोर्ट्स, अनदर ऑप्शन इज पिक वॉल्स, अनदर ऑप्शन इज पिक लाइंस। ठीक है, अनदर ऑप्शन इज मेक अ रेक्टेंगल। कैसे, रेक्टेंगल लिया, बना दिया, स्लैब बन जाएगी। ओके प्रेस किया, दिस आई विल प्रेस दिस ग्रीन फिनिश बटन, यहाँ पर स्लैब बन जाएगी। ठीक है, अनदर ऑप्शन विद द हेल्प ऑफ लाइन, कोई टेढ़ी मेढ़ी शेप आपको बनानी है जैसे चाहे मर्जी, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ इस तरीके से, कोई भी आपको कस्टमाइज शेप बनानी है यू कैन मेक दिस शेप एज वेल। ठीक है, ये भी मुझे नहीं चाहिए। सो व्हाट अदर ऑप्शंस, मुझे बहुत फास्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल मुझे बहुत जल्दी से काम करना है और एक्यूरेसी, इन दिस पर्टिकुलर केस एक्यूरेसी इज नॉट मटेरियल। बेसिकली मुझे अभी एक मॉडल प्रिपेयर करना है और रफ आइडिया लेना है और मुझे रफ एस्टिमेट बनाना है। टू आई विल गो टू रेक्टेंगल एंड देन मैं यहाँ से इसके कॉर्नर को सेलेक्ट करूंगा और आई विल मेक लाइक दिस। ठीक है, एक ही बार में मैं यहाँ पर स्लैब लगा दूँ, मेरी स्लैब यहाँ पर लग जाएगी। ठीक है, बट इसमें क्या होगा, एक तो यहाँ पर कटआउट्स हैं वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, एक यहाँ पर कटआउट्स है वो कवर हो जाएंगे, मोर ओवर कॉलम्स के ऊपर भी स्लैब बैठ जाएगा। ठीक है ना, आई विल शो यू दी अनदर वे। अगर हमने ऐसे भी कर लिया तो वी कैन मेक दी ओपनिंग्स हियर, यहाँ पर हम ओपनिंग भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओपनिंग कैसे बनाएंगे, देयर इज एन ऑप्शन ऑफ ओपनिंग हियर। ठीक है ना, शाफ्ट ओपनिंग बाय फेस, वॉल में ओपनिंग बनाना है, वॉल में ऐसे ओपनिंग बनाना है, वर्टिकल ओपनिंग बनाना है। ठीक है, कैसे भी आपको ओपनिंग बनाना है वो ओपनिंग यहाँ से बन जाता है। राइट, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर ओपनिंग बनाना है, मैंने पूरे में एक बार में लगा दिया, नाउ आई वांट टू मेक एन ओपनिंग। तो शाफ्ट ओपनिंग देख लेते हैं, शाफ्ट ओपनिंग कैसे बनेगी। I'll go to rectangle and then I'll make an opening here। This is kind of shaft ना, ये भी ऊपर से नीचे तक थ्रू आउट जाएगी। ठीक है, हम्म तो ये काइंड ऑफ शाफ्ट ही हो गई एक तरीके से। ये ओपनिंग क्रिएट कर दी यहाँ पर। फॉर हम्म एग्जाम्पल आप यहाँ पर कहीं पर ओपनिंग देना चाहते हैं, गो टू शाफ्ट। ठीक है ना, गो सेलेक्ट एनी एनी अदर काइंड ऑफ ओपनिंग एज वेल। मान लो कुछ डिजाइन की आपको ओपनिंग देनी है, आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है ना, एक शाफ्ट सिंपल शाफ्ट होती है, एक एक सिंपल ओपनिंग होती है एंड देयर इज एन ऑप्शन ऑफ शाफ्ट। ठीक है ना, शाफ्ट में शाफ्ट की जो ओपनिंग है वो ऑटोमेटिकली एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाएगी। ठीक है ना, सिंपल ओपनिंग जो होगी वो सिंपल आपकी उसी पर्टिकुलर फ्लोर में होगी। आई एम प्रेसिंग कंट्रोल जेड। ठीक है, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं और मैंने सर, स्लैब इसमें को, सेकेंडरी बीम लगाना हुआ तो सेकेंडरी बीम लगाना हो तो आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं। कैसे भी ऐड हो जाएगा ना? हाँ हाँ, ऐड हो जाएगा, आप बीम में जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल, एक सेकंड, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। ठीक, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू प्लेस हियर बीम। हम्म हम्म ठीक है, सेलेक्ट करो बीम, ये लगा के ओके। चलो। ठीक है, साइज अपने हिसाब से दे सकते हाँ हैं, ठीक है। साइज साइज आप अपना डिफाइन कर लीजिए एंड देन यू कैन पुट योर सेकेंडरी बीम्स। एक तरीका ये है ठीक स्लैब लगाने का। ठीक है, दूसरा तरीका, ठीक। another way is if you want to model your building accurately, बहुत एक्यूरेटली आपको काम करना है, जीएफसी ड्राइंग इशू करना है, तो आप क्या करेंगे, पिक लाइन लेंगे, ये पिक लाइन। ठीक है, वन बाय वन फ्लोर को बनाएंगे। पिक लाइन मतलब वो पिक कर लेता है बाउंड्री को। ठीक है,
वन बाय वन आप एक एक फ्लोर बनाएंगे, ठीक है। एक लाइन फटाफट वो क्या करेगा, पिक कर लेगा, ठीक है ना। रेक्टेंगल्स नहीं होंगे? रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, उसमें कॉर्नर पकड़ने में ना कभी कभी थोड़ा सा इशू, आई मीन देर इज देर आर चांसेस ऑफ एरर। कैन नॉट हैव ओवरलैपिंग लाइंस, ओके। कभी भी ओवरलैप डबल लाइन होंगी ना तो वो आपका एरर देगा, ठीक है ना। लेगा नहीं। हाँ लेता नहीं है वो, सो मेक श्योर दैट यू शुड नॉट हैव ओवरलैपिंग लाइंस, और क्लोज लूप भी होने चाहिए, इट शुड बी इन क्लोज लूप, ठीक है ना। अब देखो देर इज अ डिफरेंस, अभी योर बीम्स आर विजिबल क्लियरली, राइट, दैट मीन्स आपकी स्लैब बीम के अंदर अंदर है, बट जब मैंने वन गो में स्लैब बनाया था, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, मैंने रेक्टेंगल में ऐसे लेके ऐसे बनाया, पूरा कॉर्नर पिक किया और ऐसे उसको ड्रैग किया वन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, उसमें क्या हुआ, उसमें इट प्लेस्ड, इट कवर्ड द बीम्स एज वेल, ठीक है ना। देखो बीम को कवर कर लिया ना उसने, दैट मीन्स हम्म। ओवरलैपिंग, वो बीम के ऊपर लगा रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, बीम के साइड में लगा रहा है, राइट। सो दिस इज द मोर एक्यूरेट वे, दिस इज द एक्यूरेट वे, मोर एक्यूरेट वे, ठीक है ना। इसमें देर विल बी डुप्लीकेसी ऑफ क्वांटिटीज, आपकी क्वांटिटीज एक्यूरेट नहीं आएंगी, कुछ ना कुछ चांसेस होंगे एरर के, ठीक है ना, बहुत रफली आएगा यहाँ पर आपका। बट दिस केस लेटर वन इज योर एक्यूरेट वे, ठीक है। दैट इज वाई आई एम जस्ट शोइंग यू कि आपको ऐसे करना है अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए, right? If you want just, for the estimation purpose, or maybe, in the planning stage, then you can directly, drag your slabs in one go. Make sure openings are there, correct? आपको एक फ्लोर पे काम करना है, बस एक पे जो टाइम लगेगा वो लगेगा, बट उसके बाद यू कैन कॉपी, बिकॉज हमारी बिल्डिंग कैसी है, कैसी है बिल्डिंग। हम्म। वो सेम है ना सर? सेम है, बिल्कुल सही है। तो एक फ्लोर पे अगर मैं मॉडल कर लेता हूँ तो मुझे हर जगह मॉडल करने की जरूरत नहीं है। ओवरलैपिंग लाइंस हो गई है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट टेकिंग, राइट। नाउ आई एम लेफ्ट विद दिस फाइव फ्लोर्स, अगेन क्विकली मैं इसको भी कंप्लीट कर लेता हूँ। You can take the help of rectangle as well, I will show you how. So there are various ways basically, it depends on you how you want to just drag like this. Line is too short, ठीक है। So you have multiple options of creating slab, आप ऐसे भी बना सकते हैं, press OK button and then you are good to go. These are your staircases. Next class में I'll show you how to create staircases, right? So now just go to 3D view and check for your slab is ready or not. Look for your slab. See how beautiful is your slab is looking. Fine? Is it fine? फाइन। एक बार में जितने स्लैब आप लगाओगे वो सारे एक ही बार में सिलेक्ट होंगे आपके, दिस इज द ड्रॉबैक। अगर आप एक एक करके लगाना चाहते हैं तो वो एक वन बाय वन शो करेगा, बट इफ यू वांट टू इंक्लूड ऑल द स्लैब्स इन वन गो, देखो मैंने 5 स्लैब एक साथ लगाए ना बिफोर हिटिंग द फिनिश बटन, तो दिस इज द ड्रॉबैक। अगर आपको कहीं पर चेंज करना है,
सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। अगर आप वन बाय वन बनाते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग की एक स्लैब बना के दिखाई आपको, उस केस में देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर यू। वो आपके सारे इंडिविजुअल रहते हैं, ठीक है। उस केस में आप इस तरफ का जो एक स्लैब है, दिस इज स्लैब माई, का लेवल यस। सर एक बार बताएंगे स्लैब उस लेवल पे कैसे आया? किस लेवल पर? आपने तो प्लान से लगाया ना, प्लान से लगाया है लेवल मैंने। 2। अच्छा। हाँ, वो ऑटोमेटिकली उस प्लान पर काम कर रहा है ना, उसके अंदर अंदर लिया ना उसने। अच्छा, लेवल 2 पे काम कर रहे हैं ना? हाँ, लेवल 2 पे आई एम वर्किंग ऑन लेवल 2। सो बाय डिफॉल्ट इट विल टेक, अगर मैं देखो, ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, आई टेल यू। सी, if I will take the help of rectangle from this point to this point, right? So हाँ, वो क्या करेगा, तब भी वो लेवल 2 पर ही रखेगा, उसका फिनिश लेवल जो रहेगा वो लेवल 2 ही रहेगा। लेवल 2 ही रहेगा। हाँ, बट वो एडजस्ट कर लेगा अपने आप को वो, ठीक है ना, बीम्स को उसके बीम साथ के साथ एडजस्ट में कर। एडजस्ट कर लेगी। हाँ, अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने इंटीरियर में लगाया, तो अभी उसने अभी भी एडजस्ट किया। जिस फ्लोर पर मैं काम कर रहा हूँ, इट विल कंसीडर दैट फ्लोर एज योर फिनिश फ्लोर। उसके हम्म। नीचे लगाएगा वो डेप्थ में, ठीक है। अच्छा। हाँ। हाँ, से फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग एट दिस फ्लोर, ठीक है। यहाँ पर आप हम्म। काम कर रहे हैं इस फ्लोर पर। सो बाय डिफॉल्ट इट विल टेक द डेप्थ डाउन, नॉट अप। हम्म। इट विल शो योर एफ एफ एल लेवल, बिकॉज देखो ये लिखा है ना एफ एफ एल लेवल, दिस इज योर फ्लोर फिनिश लेवल। उसको मतलब उसको पता है कि मुझे यहाँ पर स्लैब फिनिश करना है, उससे ऊपर नहीं जाना हम्म। चाहिए। सो दिस इज द इंटेलिजेंसी ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। हम्म। देखो पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा है स्लैब। दिख रहे दिख। हाँ, this is the thing. So automatically it will take to you to the down, the lower level. Now another thing which is of quite importance is that जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया कि जब आप कोई भी फ्लोर को सेलेक्ट करेंगे, बाय डिफॉल्ट आपके पास दीज आर द टाइप ऑफ स्लैब्स विच आर अवेलेबल। 220 mm thickness, 200, 362, 425, these are, I mean, available in the library. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने 300 का स्लैब लगाया है यहाँ पर, ठीक है। जेनरिक जेनरिक स्लैब है, बिल्कुल जनरल स्लैब कंक्रीट का। फॉर एग्जाम्पल यू जस्ट वांट टू हैव 125 और 150, तो आपको मैंने बताया क्या करना है। सबसे पहले अगर आपको कोई चीज कस्टमाइज चाहिए तो यू नीड टू गो टू दी एडिट टाइप, वहां पर जाना है, उसका डुप्लीकेट कॉपी बनाना है, उसको नाम देना है कुछ भी, वट एवर यू वॉन्ट। नाम देने के बाद आपको उसका प्रॉपर्टीज चेंज करना है यहाँ से। द ओरिजिनल प्रॉपर्टी दिस थिकनेस यू नीड टू चेंज। इट इज 300, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू मेक इट 150, 200, वट एवर यू कैन क्रिएट। यू कैन गिव द नेम एज पर योर डिजायर, ठीक है ना। अभी के लिए मैं इसको 300 ही रख रहा हूँ। आई विल चेक इन द सेक्शन कि कितना हमें लगाना है स्लैब। स्लैब हमारा 350 का है, देखो यहाँ पर, ठीक है। हमने अभी 300 लगाया। सो आई नीड टू चेंज दी स्लैब थिकनेस। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आई मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ दिस, डुप्लीकेट, एंड देन स्लैब 350 mm, ठीक है। ऐसे मैंने नाम चेंज किया, पहले ऊपर देखो नाम चेंज हुआ। अब मुझे इसका ओरिजिनल थिकनेस भी चेंज करना है। डोंट फॉरगेट टू चेंज द थिकनेस एज वेल। गो टू एडिट एंड देन मेक इट 350। ओके, प्रेस ओके, एंड देन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर डिफॉल्ट थिकनेस 350 हो गया। अप्लाई, ओके, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करें आप, यू विल सी कि ये कितने का स्लैब है। दिस इज 350 mm। इसको सिलेक्ट करें, दिस इज 300, यू नीड टू चेंज इस, ठीक है ना। अब हमें इसको यहाँ पर जाकर चेंज करना है। अब हमारे पास लाइब्रेरी में 350 भी अवेलेबल होगा। देखो ये रहा स्लैब 350, ठीक है। इसको सेलेक्ट करो, जस्ट अपने आप चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, सेलेक्ट करना है, एंड देन गो टू लाइब्रेरी and just select the 350 thickness slab, it will automatically change। एक स्लैब अभी और बाकी है, the very first one। इसको सिलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है, and then go to the drop down menu। We have duplicate copy 350 mm thickness and you are good to go। now आपकी
एक फ्लोर की स्लैब लग चुकी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक स्लैब को सिलेक्ट करना है। उसके बाद राइट क्लिक, यू नीड टू क्लिक राइट एंड देन सेलेक्ट ऑल इंस्टेंसेस, सिमिलर इंस्टेंसेस इन एंटायर प्रोजेक्ट, राइट? व्हाट हैपेंड? Wait for a moment, just select this. No, select this slab, right? What is this happening? Just wait for a moment. Yes, right click, select all instances in the view. I have selected all the slabs, right? Now I'll copy it. Go to clipboard, copy, paste, paste to selected levels. So मुझे सेकंड फ्लोर पे आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड थर्ड, शिट मैन, थर्ड। ओके, जस्ट चेक फॉर द थर्ड, वेदर थर्ड, देखो थर्ड पे आ गया। अगेन कॉपी, पेस्ट, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल्स, 4 5 6, ठीक है। 4 5 6 पे मुझे लगाना है, तो उसने पूरे बिल्डिंग पर आपका स्लैब लगा दिया है। और बाय डिफॉल्ट उसने, मुझे लगता है, लेवल 1 पर भी लगा दिया है। लेवल 1 पर तो मुझे चाहिए ही नहीं, गलती से सेलेक्ट हो गया। मैं उसको क्या करता हूँ, डिलीट, आई नीड टू डिलीट, गो टू एनी अदर व्यू, ठीक है। तो यहाँ से आपको विच लेवल इज दिस, लेवल 0, गो टू लेवल 0, ओके, एंड सेलेक्ट दी स्लैब्स, हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। डिलीट दीज स्लैब्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? यहाँ पर तो हमें चाहिए भी नहीं ना, नीचे तो गलती से हो गया था वो। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? सही यस है। और नो? यस। ठीक है, वेरी गुड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो कंट्रोल एस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, योर बिल्डिंग इज ऑलमोस्ट रेडी, राइट? नाउ गो टू द क्रॉस सेक्शनल व्यू। क्रॉस सेक्शनल व्यू में आपने 350 का स्लैब लगाया, 800 बाय 1200 के बीम्स लगाए, 600 बाय 600 के कॉलम्स यू हैव प्लेस्ड। अब जो मेजर चीज है वो आपको तो राफ्ट लगानी है इसमें, वन स्लैब यू हैव टू क्रिएट, स्टेयरकेस जो कि और इम्पोर्टेंट है, एंड देन दिस लिफ्ट पिट, ठीक है ना? लिफ्ट पिट, एंड देन इतना करने के बाद आप लिंक रेडी हो जाएगी। दैट मीन्स अगली क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, इसमें स्टील कैसे लगाना है, ठीक है ना? reinforcement, we will start reinforcement details, ठीक है। ओ, ठीक है। reinforcement जो कि important रहेगा, I will show you how to how to place rebars, how to select rebars, how to place rebars, how to cut a section and then create detail। तो इसमें हम rebar place कर देंगे। उसके बाद we will try to take out the quantities, ठीक है, क्वांटिटीज लेंगे एंड देन फिर हम उसमें से एक पीपीएस बनाएंगे फाइनली, ठीक है। फिर उसकी शीट क्रिएट करेंगे। So this is ठीक। the workflow. This is the basically the chronology which we will be following. और जब फाइनली हमारा ये मॉडल कंप्लीट हो जाएगा विद पीओक्यू और शेड्यूल, एंड देन वी विल क्रिएट सम शीट्स आउट ऑफ दिस, कि 2D शीट्स हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है? क्लियर है। ठीक है। अब ये मॉडल बना के आप मुझे दिखाएंगे। आई डू नॉट वांट टू लिसन एनी एक्सक्यूज नाउ, ठीक है। ठीक। अदरवाइज कोई मतलब बहुत दिक्कत होगी, कोई फायदा नहीं होगा आपको भी, मुझे भी, ठीक। ठीक है। आप इतना मॉडल क्रिएट करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, देन ओनली आई विल प्रोसीड। वरना मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बोलूंगा करिए मेरे सामने, और मैं
ऑन करके रहूंगा, आप अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे, उसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में स्टेयर केस, ठीक है, लिफ्ट पिट, स्टेयर केस, और ऊपर का ये क्राउन। फाइन। फाइन सर। चलिए ठीक है। यू नीड टू क्रिएट कॉलम बीम एंड स्लैब विद कटआउट, ठीक है। कटआउट पर आपको स्लैब नहीं लगाना है, केयरफुल अबाउट दैट एज वेल। ऐसा ना हो कि आप स्टेयर केस की जगह पर भी कटआउट मतलब स्लैब लगा रहे हैं, इट शुड नॉट बी देयर, राइट। ओके। चलिए, राइट सर। तो कल कर लें क्लास, कोई इशू तो नहीं है, कल सेम टाइम पर एक क्लास कर लेते हैं। कल कल कितने कल आपको सर, कल नहीं सर। क्या है कल? कल थोड़ा सा बाहर जाना था ऑफिशियली। हम्म। परसों करते हैं। कोहिमा जाना था कल। मैं जाना है टाइम कल। लग जाएगा उधर। अच्छा, तो परसों कर ले। परसों? जी सर। हाँ परसों कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप फ्री हो तो परसों कर लेते हैं। कितना नहीं टाइम तो मिल जाएगा इसको कल के बाद में बनाने का? कभी हम्म। है। कहाँ की टाइम मिल जाएगा बनाने का ना, तो मॉडल कोई ठीक है। ठीक है, तो कल, हाँ कल का टाइम ले लो, सही है। ओके, परसों। ठीक है। ठीक है। ओके, गुड नाइट, बाय बाय। ओके। गुड नाइट सर।